Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a sound source as emits frequency of 180 hertz when moving with velocity 5 meter per second towards a moving wall with moving with same speed as of source, and a stationary observer hears the sound. The situation is shown in the diagram. Fill the number of beats per second heard by the observer. Speed of sound is 340 meter per second. Option 1 2, option 2 0, option 3 5, option 4 7. So pehle we need to understand the key concept that we will be using over here. So this is we can say the relation between the source and the observer, right? Source of sound and the observer. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर के अंदर, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर पे रिलेटिव मोशन होगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी समथिंग डिफरेंट, एंड दैट frequency that is known as the apparent frequency is given by the formula v plus minus of v naught divided by v minus plus of vs into n. यहाँ पे we need to be clear with the terms. V is the speed of sound in air, or velocity of sound in air. V naught is the velocity of observer. Vs is velocity of the source. N is the actual frequency. N is the apparent frequency, right? And यहाँ पे about the sign we must understand in positive in numerator and negative in denominator indicates that the source and sounds are moving towards each other, या फिर either of the one is moving towards the other. राइट. सो टुवर्ड्स वाली कंडीशन में ऊपर न्यूमरेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव, एंड इफ दे आर रेसिडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो in the numerator we will take negative, that is velocity of observer will be taken as negative and velocity of source will be taken as positive in the denominator. so ये केस है हमारा अवे जाने का. ठीक है. सो अब ये सिचुएशन को समझते हुए we will try to answer the given question. Also we need to understand ये applicable है तभी जब we can say source and observer are in the same line. Also secondly जब उनके बीच में relative motion होगा तभी. और हमें पूछा गया है we are interested in calculating the beat frequency. So beat frequency basically denoted with capital, and it is nothing but the difference between the two frequency of two sound sources, yeah, two sound wave basically, right? So in this situation first we need to calculate the value of n1 and then we will calculate the value of n2 and we will take the difference, and वही हमें आंसर देगा इस क्वेश्चन का, राइट? अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वॉल है जो मूव कर रही है एंड सोर्स है जो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन में तो ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जाता हुआ दिख रहा है. अब क्या होगा इन दिस सिचुएशन? लेट्स ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओवर हियर. सो वी कैन से ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारी वॉल है, राइट? एंड वॉल भी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड सोर्स इज ऑल्सो मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जर्वर रेस्ट पे है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो केसेस डेवलप होंगे. बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली कब मिलेगी हमें? जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा. सो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कौन सी चीज़ों का आएगा? एक तो जब सोर्स दूर जाएगा ऑब्जर्वर से तब एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, राइट? जो कि हम लिख सकते हैं लेट्स से n1, एंड n1 हम क्या लिखेंगे? ये केस होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 है, सो वी कैन से, एंड दिस इज द केस ऑफ मूविंग अवे. सो वी कैन राइट द फॉर्मूला कैन बी रिटन एज v अपॉन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, सो v अपॉन नीचे इन द डिनोमिनेटर वी विल यूज पॉजिटिव साइन, so v plus of vs that is 5, and that will be equals to the frequency emitted by the actual frequency emitted by the source, right? अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अब इसको कौन सी सुनाई देगी. अब वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी कि व्हेन वी कैन सी ये सोर्स और ये वॉल को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो बोथ आर मूविंग विथ सेम स्पीड, यानी कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं. सो जितनी फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट? सो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तो बात हो गई ऑब्जर्वर एंड सोर्स की. ऑब्जर्वर एंड सोर्स की बात हो गई है डायरेक्टली. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें निकाल ली थी n1 वो हमने निकाल ली, राइट? अब हमें n2 निकालना है, तो n2 के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? सोर्स एंड वॉल. सो सोर्स एंड वॉल के लिए वी कैन सी कि वॉल को हम एक बार ऑब्जर्वर समझ लेते हैं. सो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड से चल रहे थे, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. रिलेटिव मोशन नहीं तो जितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होगा उतनी ही इसको रिसीव हो रही होगी, और उतनी ही है फिर नेक्स्ट केस में जब ये रिफ्लेक्ट करेगा. तो अब हम इसको सोर्स ऑफ साउंड समझ लेते हैं, एंड ऑब्जर्वर तो हमारा स्टेशनरी है यहाँ पे, राइट? सो सोर्स ऑफ साउंड व्हेन वी कैन राइट ओवर हियर व्हेन वॉल becomes source
ऑफ साउंड, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं, एक्चुअली में वॉल सोर्स नहीं है साउंड का, बट हमने माना है कि जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा साउंड को यहाँ से, सो इट विल बी एज इफ दैट इज के साउंड इज कमिंग फ्रॉम द वॉल। सो इन दैट सिनेरियो हम वॉल को सोर्स मान लेंगे। सो सोर्स अब क्या हो रहा है, वी कैन सी सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, दैट इज एन ओनली। सो नाउ यहाँ पे हम वी कैन क्लियरली सी के जो वॉल है इट इज बिहेविंग एज इफ इट इज द सोर्स एंड इट इज मूविंग अवे विद 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये वापस से अवे वाला केस है, सो वी कैन से n2 विल बी इक्वल्स टू v अपॉन सेम केस आएगा प्लस 5 इंटू n, राइट। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, दैट इज बिट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर वी कैन से कैपिटल N क्या आ जाएगा, ये वैल्यू तो सेम आ रही है n1 n2 की, सो n1 माइनस n2 विल बी इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।